thing. So the next topic in the same, what we're doing now is something called सर as वीडियो नहीं आ रहा सर. वीडियो नहीं आ रहा, बाकियों को भी नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। So if you could just log out and then log in again, just see. आ गया सर। Okay. All आ right. गया सर. All right. So we're now talking about something called as appendages. So what are appendages? Sir, your video is still not visible. Are you can just log out and then log in again, please. Okay. आगे. Okay. So if we have a situation like this, that is, I this is a half fish. If this is a half fish, and we notice that in this half fish, I can divide this amongst between three sections. The section which is from half perpendicular up to a certain value, the radius of curvature changes very sharply. The curvature changes very sharply. Similarly, at the forward end, the curvature changes very sharply. And from a certain point here to a certain point here, the curvature is not so sharp. So when the curvature is not so sharp, then in Simpson's language by the naval architects, it's called as main body, जिसको हम शिप पे पैरेलल बॉडी लेंथ भी कहते हैं. और जहां पे कर्वेचर बड़ा शार्प चेंज होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड अपेंडेज, और इसको हम कहते हैं आफ्टर अपेंडेज. तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि अगर सपोजिंग ये मेरे सेमी ऑर्डिनेट्स हैं, सपोजिंग, और इनकी स्पेसिंग h है, तो जो सेमी ऑर्डिनेट्स अपेंडेजेस में हैं they will be h by 2. There will be h by 2. मतलब अगर मेन बॉडी का हमारा स्पेसिंग, फ्रेम स्पेसिंग 10-10 मीटर है तो यहाँ पे 5 है. अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो ये 2.5 है. That is how the ratio is
1:2 or 2:1, whichever way you want to call it. This is twice of this. Similarly, in the after appendage also, you could have a different number of ordinates, maybe just 3 of them. The spacing of them will be h by 2. So it is exactly half of it. That's how you identify an appendage from the main body. It is not 1/3, it is not 1/4, it is half. So इसलिए when you on the ship, जो हमारी फ्रेम स्पेसिंग है, जब आप 4P के अंदर घुसोगे, तो you will find that the frame spacing is converging and becoming h by 2. Similarly, if you go into the aft peak tank, you will find the frame or the steering flat, you will find the frame spacing becoming h by 2. Is it okay so far? Yes, sir. Okay. So in certain questions, you might only get main body and forward appendage, no after appendage. It is possible. In some questions, you might get both appendages. Some question you might get only forward appendage. Some question you might get only after appendage. So it is possible. But मतलब basically ये 1:2 या 2:1 का रेशियो रहेगा. ये मतलब है उसका. अब बात आ जाती है कि मैं इस क्वेश्चन में आपको दे दूं लेंथ is 100 meters. I want you to calculate n and therefore I want you to calculate h. तो n की गिनती कैसे करोगे? तो n की हमने जो डेफिनेशन लिखी थी शुरू में, उसको पढ़ो. फर्स्ट लेक्चर में जब सिम्पसन स्टार्ट किया था 15 तारीख को. The number of ordinates for which h is the co-equivalent interval. Number of n is the number of ordinates for which h is the common equal interval. अब शुरू करते हैं गिनती. पहला वाला हमेशा 1 होगा. 1 1.5. h has to be the common equal interval. ये h by 2 है. 1 1.5 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 8. n is 8. So h will be 100 divided by 8 minus 1. ये समझ में आया? सर एक बार और बता दीजिए. एक बार और. यहां से गिनती करता हूं इस बार राइट से. सबसे पहला हमेशा 1 होता है. 1. नेक्स्ट क्या होगा? 1.5. करेक्ट. नेक्स्ट 2. नेक्स्ट 2.5. नेक्स्ट Then it will be 3. नेक्स्ट 4. 5. 6. 7. 7.5. 8. इज इट ओके? मतलब मैं क्या जंप कर रहा हूं वो डिफाइन करेगा. अगर मैं हाफ h by 2 जंप कर रहा हूं तो 0.5. मतलब n कैन बी अ 0.5 ऑल्सो. डेसिमल में भी आ सकता है.
That's what I'm trying to say. In some question, you can get a n as 6.5. It's possible. That's what I'm trying to say. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. All right. एक और एग्जांपल ले लो. I want you to calculate n. Length is 100 meters. And therefore calculate h. तो सबसे पहले तो n कैलकुलेट करना है. हाँ जी, n कितना? Sir, 5.5. Everybody is getting the same. Is everybody getting the same? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इस बारे? कहीं से भी गिनती कर सकते हो. यहां से करता हूं 1 2 3 4 4.5 5 5.5 5.5. उधर से करता हूं 1 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.5. पहला वाला कहीं से भी कर रहे हो वो हमेशा 1 रहेगा. उसके बाद या तो h/2 जंप कर रहे हो या h जंप कर रहे हो. डिपेंड करता है क्या जंप कर रहे हो. ठीक है. इज दिस ओके? Is this okay? Yes, sir. All right. Okay. Next. Supposing ये डायग्राम है. सर ये अपेंडेज में जब काउंट करेंगे तो दैट फर्स्ट वन विल बी ऑलवेज 1, देन हाफ विल स्टार्ट. करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. पहला वाला हमेशा 1 होगा. उसके बाद में क्या जंप कर रहे हो वो मैटर करता है. ओके. अगर h/2 जंप करते हो तो 0.5 होगा. अगर फुल h जंप करते हो तो फुल 1 होगा. ठीक है. इज इट ओके? जी सर. ओके. अब मैं आ रहा हूं कि ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है. आफ्टर अपेंडेज में कितने ऑर्डिनेट है? 3 सर. 3 है. कौन सा रूल लगेगा आफ्टर अपेंडेज में? 1. रूल 1. मेन बॉडी में कितने ऑर्डिनेट्स हैं? 5. 5. कौन सा रूल लगेगा? 1. रूल नंबर 1. फॉरवर्ड अपेंडेज में कितना है? So 5. 5. कौन सा रूल लगेगा? 1. रूल 1. मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा रूल डिफाइन करूं या बनाऊं जिससे मैं एक शॉट में इन वन गो मैं इसके सिम्पसन
मल्टीप्लायर इस पे लगाऊं एंड मुझे सीधा एसओपी मिल जाए, एंड देयरफॉर मैं सीधा एक ही शॉट में इसके एरिया निकाल सकूं इन वन स्नैपशॉट मैनर। मैं चाहता हूं, क्योंकि अदरवाइज मैं, ये तो 3 अलग अलग पीस हैं, these are 3 pieces, तो मेरे को इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इसका एरिया अलग निकालूंगा, फिर इसका एरिया अलग निकालूंगा, फिर तीनों को जोड़ूंगा। करेक्ट, दैट्स वन वे। बट मैं Yes, चाहता हूं कि कुछ ऐसा मैं कॉम्बो रूल डालूं या डिराइव करूं जिसमें मैं कॉम्बो रूल फॉर मेन बॉडी एंड अपेंडेज वन शॉट मैं डिराइव करना चाहता हूं। कॉम्बो रूल फॉर मेन बॉडी एंड अपेंडेज इन वन शॉट, आई शुड बी एबल टू गेट इट। ये चाहता हूं मैं। तो अगर मैं ये कॉम्बो रूल जो मैं बोल रहा हूं अब लगाने हैं, तो इसके कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, वो लिख लेते हैं जरा। तो पॉइंट नंबर 1, point number 1, the same Simpson rule must apply in the main body and the appendage. The same Simpson rule must apply in the main body and the appendage throughout. क्या मतलब कि यहाँ पे रूल 1 है, यहाँ पे रूल 1 है, यहाँ पे रूल 1 है। अगर ये तीनों में रूल 1 है तो मेरा ये कॉम्बो रूल चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा रूल 1 है, मेन बॉडी में रूल 2 है, और फिर यहाँ रूल 1 है, तो ये नहीं चलेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कॉमन ही नहीं निकल पाएगा कुछ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरिया है सीधा H3 इंटू SOP लग जाए, सीधा H/3 मेरा बाहर आना चाहिए। अगर मेरा इसमें रूल 2 होगा तो 3H/8 है, तो फिर मेरा H/3 बाहर ही नहीं आएगा। करेक्ट? correct, sir. तो सिमिलरली अगर मेरा रूल 2 लगेगा तो थ्रू एंड थ्रू मेरा रूल 2 लगना चाहिए। इधर भी रूल 2, यहाँ पे भी रूल 2, यहाँ पे भी रूल 2। तो उस केस में मेरा कॉम्बो लगेगा और मेरा एरिया बन जाएगा 3H/8 इंटू SOP। तो सेम रूल लगना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब सिम्पसन मल्टीप्लायर्स की बात आ रही है। जब अगर पॉइंट नंबर 1 को सेटिस्फाई कर लिया है तो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं हम। दी SM, अब ये जो है मेरा कॉमन बल्कहेड है, ये जहाज पे ये कॉमन बल्कहेड, ये क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल दिस बी ऑन द शिप? Collision bulkhead. Collision bulkhead. Absolutely right. So this is my collision bulkhead. So everything forward of my collision bulkhead, that means my four-peak store, my chain locker, my four-peak tank, etc., rope locker, वो सारा जो है, it is the forward appendage. It's a part of the forward appendage. And ये क्या होगा मेरे जहाज पे, ये वाला bulkhead, ये वाला Aft peak bulkhead. Bulkhead for protection of stern tube Or and rudder. engine room wala bulkhead, which is common. Yeah, so your accommodation brake bulkhead or your engine room wala bulkhead. This is that bulkhead. So everything aft of that
दैट मीन्स योर poop deck, everything, वो सारा जितना भी पार्ट है poop deck वाला पार्ट, वो सारा जो कहलाता है वो आफ्टर अपेंडेज कहलाएगा। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। सो ये हमारे कॉमन बल्कहेड्स बन जाते हैं अपेंडेज और मेन बॉडी के, ये भी अपेंडेज और मेन बॉडी के। सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, द SM फॉर द कॉमन बल्कहेड or common ordinate between main body and appendage shall always be 1.5। ये हमेशा 1.5 होगा। रिपीट करेंगे? The SM for the common ordinate between main body and appendage shall always be 1.5, comma, the SM means Simpson multiplier, the SM for the end ordinate of the appendage shall always be 0.5। The SM for the remaining ordinates of the appendage shall be half of the corresponding SM of the main body सर एक बार ये दोबारा रिपीट करोगे सर? द एसएम ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स ऑफ the SM of the remaining ordinates of the appendage shall be half of the corresponding SM shall be half of the corresponding SM of the main body while applying the same Simpson rule in the same order। Sir, please repeat last line, sir. है लास्ट लाइन कहाँ तक लिखा था? Sir, SM of the main body tak. Can somebody just repeat the sentence, please? Sir, while उसके applying बाद है- the same Simpson's rule in the same order. ये लिख लो। While applying the same Simpson rule in the same order। Sir, can you ask someone to please repeat point number 2 पूरा? Okay. Can somebody just repeat the whole of point number 2 slowly, please? the SM for the common bulkhead or common ordinate between main body and appendage
must be 1.5. Second point है the SM for the end ordinate of the appendage must always be 0.5. तीसरा है the SM of the remaining ordinates of the appendage shall be half of the corresponding SM of the main body while applying the same Simpson rule in the same order. बिल्कुल ठीक। अब इसका मतलब जानते हैं। ये कॉमन बल्कहेड है या कॉमन ऑर्डिनेट है, मतलब अपेंडेज और मेन बॉडी का कॉमन है, तो ये हमेशा 1.5 होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबके लिए? Yes. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट कहता है जो एंड ऑर्डिनेट है अपेंडेज का वो हमेशा 0.5 और 0.5 होगा, हमेशा। ये ओके है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब कहता है मेन बॉडी में घुसो, कौन सा रूल लगा रहे हो? रूल 1 लगा रहे हो। तो दूसरा वाला ऑर्डिनेट है, दूसरा वाले का क्या सिम्पसन मल्टीप्लायर होता है? 4. 4। 1, 4, 1. उसके बाद क्या होता है? 4, 2, 4, 1. sir. 4, 2. 2। 4 to 4. 4। ये ओके है? ये ओके है? Yes, sir. Oh, yes, sir. अब मैं इस पे जा रहा हूं, ये दूसरा वाला है, तो इसका 4 का ये दूसरा है, इसका आधा, कि क्या होगा? 4 का आधा 2 हो गया. 2। अब ये खत्म हो गया। अब इधर आ रहा हूं मैं, इसी ये दूसरा है, 4 का आधा, नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2. 2। 1. फिर नेक्स्ट वाला 2 का आधा, 1. 1. फिर 4 का आधा। 2. ये बन गए मेरे सिम्पसन मल्टीप्लायर। ये मेरा कॉलम नंबर 2 बन रहा है उस टेबल का, जो मुझे एसओपी 1 देगा। सर एक बार प्लीज सर फिर से बता दिया सर बस। कॉमन बल्कहेड 1.5, एंड ऑर्डिनेट ऑफ द अपेंडेज 0.5, मेन बॉडी में उसी नॉर्मल रूट पे लगता है, 4-2 4-2 4-2 चलता रहेगा। अपेंडेज इनका आधा, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, तब तक लगता रहेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए। ओके इज इट ऑल राइट? यस सर। Yes. तो बेसिकली मेरे को सीधा का सीधा ये एसओपी 1 दे देगा। तो आई जस्ट डोंट नीड टू सेपरेट इट, एक शॉट में मेरे को आंसर मिलेगा। आई विल सेव एटलीस्ट 10 मिनट्स बाय डूइंग दिस। अभी कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन एज वी प्रोग्रेस, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, तो दिस विल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रूटीन। तो जब भी अपेंडेज दिया होगा क्वेश्चन में, 99% ऑफ द टाइम्स ये कॉम्बो रूल लगेगा। वो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि लगाओ। सर और ऐसा ही होएगा कि ये सारे ओड ही आए, मतलब 1 हर एक पे एप्लीकेबल ही हो, ऐसा नहीं आएगा कि कभी नहीं, बीच अभी में 2 लग रहा और अब हम पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, ये जैसे आफ्ट अपेंडेज में अभी हाफ ब्रेथ, एक तो जो 0 वाली है वो हो गई, एक और बीच में सर, अगर एक और होती तो सर मतलब 4 फिर 2 का 2 4 होते, अगर इसमें हाँ जी 4 सर। होते तो इसमें कौन सा रूल लगता?
नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सर रिवर्स ऑर्डर में ही चलना है ना आफ्ट अपेंडेज में? रिवर्स ऑर्डर मतलब जैसे सर आपने 2 किया है, स्टार्ट कहाँ से करना है सर? हाँ, इसी में, मतलब अगर और कुछ होता तो। और नहीं, ये मतलब जिस दिशा में आपको ऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको ऑर्डिनेट्स अगर आफ्टर परपेंडिकुलर से दिए हैं तो आप लेफ्ट से ही चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर आपको फॉरवर्ड से दिए हैं तो आप फॉरवर्ड टू राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। ओके सर, थैंक यू। वो तो एक ही बात रहेगी। बट अगर इसमें 4 हैं और इसमें 5 हैं तो आपका ये कॉम्बो ही नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 को ही नहीं आप मीट कर रहे। एग्रीड? हाँ जी सर, थैंक यू सर। यस। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो। Point number 3. The above points apply even when using combo with rule 2. तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका ओके। आफ्टर पेंडेज में कौन सा रूल लगेगा? रूल 1। फिर से देखो। सर रूल 2 लगेगा। सर रूल 2। रूल 2 2 2 Everybody agrees on it? यस सर, एन एस 4। ओके। मेन बॉडी में कौन सा रूल लगेगा? सर ऑन प्रायोरिटी 1। ओके, रूल 1 भी लग Rule सकता 1। है, रूल 1 भी लग सकता है, रूल 2 भी लग सकता है। एग्रीड? यस सर। ओके। फॉरवर्ड अपेंडेज में कौन सा रूल लगेगा? रूल 2 सर। Rule 2. Which is a rule which is common to all? रूल 2। Rule 2. So you will use a combo with rule 2. मतलब ये रूल प्रायोरिटी के रूल के ऊपर में प्रोसीड कर रहा है। एग्रीड? समझ में आया? इसमें रूल 2 लग रहा है, इसमें रूल 1 भी लगता है, रूल 2 भी लगता है, इसमें रूल 2 लगता है। विच इज अ रूल विच इज कॉमन टू ऑल? 2। 2. सर रूल 2। सो यू विल यूज रूल 2। कहने का मतलब है ये आपके वो वाले प्रायोरिटी के रूल के ऊपर में प्रोसीड कर रहा है ये कॉम्बो। So the combo of main body and appendage is greater than your priority. मतलब जब भी आपको ये दिया जाएगा आप इसको अहमियत दोगे कि भैया इसको यूज करना है। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपने लिखा।
एग्रीड? यस सर। क्लियर है? So we are going to be using rule 2 through and through. So now I want you to write down the Simpson's multipliers below each ordinate or below each semi-ordinate using your combo and using your combo of point number 2 and 3. सर जैसे रूल 2 के लिए जब हम n शुरू में काउंट करेंगे, जैसे अगर नॉर्मली आफ्ट अपेंडेज देखते और h/2 ना देखते तो 1 2 3 4 है, तो वहां से पता चला कि 2 आ जाएगा, 4 है तो। बट अगर 1 1.5 2 2.5 ऐसे तो नहीं देखना ना उस टाइम n के लिए। n की काउंटिंग के लिए बात कर रहे हो? हाँ जी सर। n की काउंटिंग का तो रूल हमारा हमने अलग कभी किया था ना, तो वही फॉलो करोगे। ठीक है, बस 4 है तो 4 है, वो h/2 को यहाँ पे ना वर्ज करेंगे ना। नहीं 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 नहीं, होल्ड इट, क्या कर रहे हो भाई? n अभी तो आपको सिखाया है आधा घंटा पहले। n आपको अभी सिखाया है मैंने। पहला वाला क्या होता है? 1 उसके बाद 1.5 1 1.5 2 2.5 आ गया सर। उसके बाद 3 नहीं 3.5 नो सॉरी 3 सॉरी 2.5 फिर 3.5 4.5 5.5। तो सर करेक्ट। स्टार्टिंग वाला मैं कह रहा था, जैसे अब ये है, ये तो 2.5 आया मेरा n। नहीं ना, ये 1 1.5 1.5 2 2 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 8.5 9 9 9 9.5 9.5 10. and 10 So n is 10. n is 10। सर जो फर्स्ट So पार्ट जैसे आपने ऊपर नहीं लिखा सर, ए जो उसके ऊपर R2 लिखा हुआ है, वो तो रूल 2 है। वो तो हाँ आपको सर। वो तो सिखा रहा हूँ कि कॉम्बो कौन सा लगाना है, मल्टीप्लाई कौन से लगाओगे, उसकी बातें कर रहा हूँ अभी तो मैं। नहीं सर, क्वेश्चन ये है कि रूल कौन सा अप्लाई करना है वो डिसाइड करने के लिए n काउंट करते हैं, और n काउंट करने का पहले था कि 1 2 3 4 करके, लेकिन नहीं अगर अपेंडेज है। पूरा मिक्स कर दिया, हाँ वही सर, पूरा मिक्स कर दिया, पूरा हौच पौच कर दिया, हाँ तो वही क्या पूरा कैसे नहीं, डिफरेंस पूरा हौच पौच कर दिया। जो n की कैलकुलेशन सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, वॉज टू कैलकुलेट h। अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा लेंथ इज 100 मीटर्स, तो h कितना है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो ऐसे जैसे हाफ हाफ वाला 50। करेक्ट। ओके सर, मतलब कि कौन सा रूल लगाना है वो डिसाइड करने के लिए ऑर्डिनेट्स को एज इंटीजर गिनना है 1 2 3 4, और बिल्कुल ठीक, कैलकुलेशन के लिए जो n लेना है उसको। बिल्कुल ठीक। ओके सर यही पूछ रहा था, एज एन रूल डिसाइड करने के लिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर 1 2 चार 3 हैं, 4 होल नंबर्स है। ये होल ओके सर, नंबर यही हैं, पूछ ये रहा इंटीजर है ये। था। ओके बट ओके इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका n बन गया, अब ये नहीं मैं बोल रहा। आई ओके सर। एम नॉट सेइंग ये n बन गए अब आपके। ये रूल 2 डिसाइड करने के लिए था, फिर ये 7 थे, फिर ये 4 थे। डज नॉट मीन योर टोटल n इज द सम टोटल ऑफ ऑल दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट। ओके सर, वो इनिशियल रूल देखना हो तो सिर्फ नॉर्मल 1 2 3 4 कर लिया, पता चल गया R2 है या बस R1 है, और बस उसके बाद एक्चुअल n में 0.5 इंक्लूड कर लेंगे। एब्सोल्युटली, ओके सर। बिल्कुल ठीक। ये आपके सिम्पसन मल्टीप्लायर बनेंगे, कंपेयर कर लो जरा। इसमें किसी को कोई डाउट?
सपोजिंग आफ्ट अपेंडेज में 7 होते तो इसके बाद, इस डेढ़ वाले के बाद नेक्स्ट वाले का क्या होता? वन। एब्सोल्युटली राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला 1.5। करेक्ट। फिर नेक्स्ट वाला 1.5। करेक्ट। इज दैट ओके? कैसे आया ये? सपोजिंग इसमें 7 होते, इसमें 7 होते, इसमें 4 होते, तो भी रूल 2 का कॉम्बो लगता। जी सर। अगर इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 7 हैं, तो कौन सा कॉम्बो लगेगा? 1। तब रूल 1 का कॉम्बो, तब 1 का कॉम्बो लगेगा। ये क्लियर हो गया? अब एक आखिरी वाला, लास्ट वन। ओके, कौन सा रूल लगाओगे? So rule 2. Main body rule 1. Rule 2 we can Sir, use. main And body is rule 1 and Rule 2, half sir. appendage rule 2. रूल 2 2 थ्रो we एंड can थ्रू use. लगेगा। Yeah. एग्रीड? Yeah. All right. Now I want you to write down the Simpson's multipliers. This is a end ordinate of a main body, not of an appendage. तो इस पे 1 लगेगा। Is that okay? सीरी लिखा है नहीं सीरियल। ये मतलब ये दिस इज, मैंने उसमें डाला नहीं है बिकॉज और कंफ्यूज कर देता, बट बेसिकली ये नॉर्मल मेन बॉडी है। तो नॉर्मल मेन बॉडी जो है वो तो अपने 133 233 या 144 1424 उसमें चलती है। तो ये मेन बॉडी का बल्कहेड है, मेन बॉडी का ऑर्डिनेट है, तो वो तो 1 ही रहेगा। खाली मेन बॉडी है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है ओके। इसलिए। इज दिस ओके? ओके। अब सपोजिंग लीवर लगाने हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एरिया, वो तो आपने निकाल लिया, 3h/8 इंटू SOP कर दोगे। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक सेंटर फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। इस वाले में फाइंड आउट द GC फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर, मतलब आपने लीवर लगाना है। तो
पहले वाले का लीवर क्या होगा? पहले वाले में 0 होगा सर स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 0। नेक्स्ट वाले का लीवर क्या होगा? h/2। सो 0.5 h। नेक्स्ट वाले का लीवर क्या होगा? 1h। 1 h। नेक्स्ट वाले का लीवर क्या होगा? 2h। नेक्स्ट वाले का? 3h। नेक्स्ट वाले का? 4, 5, 5 h। 5.5, 5.5 h। 6, 6.5, 6 h, 6.5 h, and then last wala 7 h. Is this lever okay with everybody? लीवर में किसी को कोई डाउट? ये आपको SOP 2 देगा सीधा सीधा का सीधा, and h/3 into SOP 2 divided by h/3 into SOP 1 will give you the geometric center from half perpendicular. एक शॉट में मिलेगा आपको आंसर। सर एक बार सेकंड वाले फिगर में लीवर लगा दीजिए सर। अभी उसमें भी आ रहा हूँ। ये वाला क्लियर है? यस सर। ओके, अब इधर आता हूँ। इसमें मैं सपोजिंग आपको कहता हूँ टेल मी द GC फ्रॉम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। सो लीवर कहाँ से लगाओगे? फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। लीवर फ्रॉम फॉरवर्ड। सो इस वाले का लीवर क्या होगा? 0h। 0 नेक्स्ट वाले का 0.5h। 0.5h। 0.5 h। नेक्स्ट वाले का 1 h। नेक्स्ट वाले का 1.5h। 1.5h। 1.5 h। नेक्स्ट वाले का 2.5। 2.5h। 2.5 h। नेक्स्ट वाले का 3.5h। 3.5 h। नेक्स्ट वाले का 4.5h। 4.5 h। नेक्स्ट वाले का 5.5h। नेक्स्ट वाले का 6.5h। नेक्स्ट वाले का 7.5h। यहाँ तक ओके है? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब नेक्स्ट वाला 8h। 8h। नेक्स्ट 8.5। 9h। ये आपका लीवर फ्रॉम फॉरवर्ड। दिस विल गिव यू योर GC फ्रॉम फॉरवर्ड। 3h/8 into SOP 2 will give you your first moment, divided by 3h/8 into SOP 1 will give you your GC from forward. ठीक है? Is that okay? Yes sir. Okay. अब तीसरे वाले में आ जाओ। लीवर फ्रॉम aft. पहला वाला 0 0h 1h 1h 2h 2h 3h 2h 4h 5h सर इसमें आप दूसरी तरफ नहीं है क्या? हाँ जी, इसमें आप अपेंडेज जो है वो दूसरा आगे वाले की तरफ नहीं है, वो ए लिखा हुआ है। ओ सॉरी, ये फॉरवर्ड अपेंडेज है। गलत गलत मैंने, सॉरी, माय मिस्टेक। ये फॉरवर्ड अपेंडेज है, माय मिस्टेक। दिस इज आफ्टर परपेंडिकुलर, दिस इज फॉरवर्ड परपेंडिकुलर ऑलवेज। तो ये 6h तक ये चल रहा है। उसके बाद 6.5h
7H, and 7.5H. So are the levers okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. इसी में मैं आपसे पूछता GC फ्रॉम फॉरवर्ड, तो उल्टा कर देते 0H, 0.5H, 1H, 1.5H, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 H. ठीक है, is this okay? Yes, sir.